Question number 7. This question is of binomial distribution. On any given day, the probability that Moina messes her friend Pasha is 0.72. On any given day, the probability that Moina messages her friend Pasha is 0.72. ये मैसेज करने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.72 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 days Moina messages Pasha on no more than 9 days. This question is of binomial distribution because a fixed number of trials 12 days are given and the probability of success messaging की probability है, that is probability of success. So we have data n number of fixed trials that are given, n is equal to 12, probability of messaging, that is probability of success, that is 0.72, or q, that is the probability of failure, 1 minus p, that will be 1 में से 0.72 minus करेंगे तो we get 0.28. This is the data of the question. We have to find the probability that Moina messes Pasha on no more than 9 days. Not more than 9 days. So this means that we have to find the probability of x is less than or equal to 9. Less than, तो इसको हम no more than 10 days को लिखेंगे less than or equal to 9. तो 12 में से 9 डेज भी हो सकते हैं, 12 में से 8, 12 सी 7, 12 सी 6, 12 सी 0 तक हमने आना है. तो ये कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी. तो इसका अल्टरनेटिव भी है कि हम 1 में से मिसिंग वैल्यूज जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इसके लिए बाइनोमियल के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r n सी आर q पावर n माइनस r p पावर r. यहाँ पे n सी आर सी फॉर कॉम्बिनेशन, ये नोटेशन अब या n फाइंड करने के लिए n वी विल यूज कैलकुलेटर. q is the probability of failure, p is the probability of success, r will be the values which are we will take from this inequality. So n is given, that is 12. So we will write this inequality as 1 minus missing values. Missing values कौन कौन सी हैं? 10, 11, 10, 11 और 12. ये देखिए 12 नंबर ऑफ फिक्स जो है वो सैंपल रैंडम सैंपल 12 डेज हैं. तो लेस देन 9, लेस देन इक्वल टू 9 मीन 12 में से 9, 12 में 8, 12 सी, तो वो 8, 12 सी 7 वगैरह वो कैलकुलेशन जो है वो लेंथी होगी. तो हम लेंथी कैलकुलेशन से अवॉइड करेंगे. तो वी विल यूज अल्टरनेटिव, दैट इज 1 minus probability of 10, 11, 12. So 1 minus, now we will use here formula. पहले हम 10 की probability फाइंड करेंगे. हमारे पास n 12 है और r जो है वो 10 लेंगे. तो ये आ जाएगा 12 c 10 1 minus 12 c 10 q power, q is 0.28, q power n minus r, that is 2, p is 0.72 power 10. Next will be 12 c 11 0.28 power 12 minus 11, that is 1, 0.72 power 11. Next is 12c 12 q power 0.828
12 minus 12, that is 0, power is 0, into 0.72 power 12. Now we will calculate it. फर्स्ट ऑप्शन इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको और इसको सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सो वन माइनस फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर जो है ये आएगा 0.193, 0.19372 प्लस नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.09057. Third option, calculating, after calculating we get 0.01941. So after calculating we will add up these three terms और वन में से subtract करेंगे इनका sum, तो we get 0.696 correct to three significant figure. This is the answer. The next part B of this question is Moina message Pasha on 1st January. Moina message Pasha on 1st January. Find the probability that the next day on which she messages Pasha is 5 January. फर्स्ट मैसेज जो है 1 जनवरी को करती है, तो नेक्स्ट क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट डे ऑन विच शी मैसेजेस पाशा इज 5 जनवरी. दिस मीन्स दैट कोई 2 जनवरी को वो नहीं करती, 3 को नहीं करती, 4 को, 5 जनवरी को करती है. तो सो यहाँ पे ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट आ जाता है. वो ट्री डायग्राम के बगैर ही हमने कर लेना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो सो फर्स्ट 1 जनवरी को मैसेज करती है लेकिन 2 जनवरी को नहीं करती. तो तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मैसेजिंग वो क्या है, वो 0.28 है. मैसेजिंग की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज 0.72. तो सो 2 जनवरी probability is 0.28. This is 2 January. 3 January not messaging. 4 January not messaging. बट 5 जनवरी को हमें प्रोबेबिलिटी करनी, 5 जनवरी को मैसेजिंग, नेक्स्ट मैसेजिंग 5 जनवरी को होती है. तो मैसेजिंग की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज 0.72, दैट इज 5 जनवरी. नाउ मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट, यहाँ पे देखें 0.28, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, वी कैन write it as 0.28 power 3 into 0.72, 0.72. After calculating we get the answer is 0.0158. This is the answer correct to three significant figure, 0.0158. So next part of this question is of normal approximation to the binomial distribution. Use an approximation to find the probability that in any period of 100 days, यहाँ पे number of observation exceed हो गई है, approximation है, Moina messages Pasha on fewer than 64 days. Fewer than 64 days को हम कैसे लिखेंगे, probability of x is less than 64, ये हमने फाइंड करना है. और यहाँ पे कंटिन्यूटी प्रोडक्शन होगी क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है. तो सो
नो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे एक्सीड हो गए, नंबर ऑफ डेज जो है अब 100 है। तो सो वी विल राइट हियर द डाटा n इज इक्वल टू 100। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 64। यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन होगी। x इज लेस देन 64 मीन वी विल टेक द लोअर बाउंड्री ऑफ 64 0.5 जो एब्सोल्यूट एरर है उसमें से बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से 64 से, वी गेट 63.5। ये इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन हो गई है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है। वी विल एडजस्ट इट बाय कंटिन्यूटी करेक्शन। इसकी कंटिन्यूटी करेक्शन हो जाएगी 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 63.5 है। Now we will use formula convert x into z by using this x is equal z is equal to x minus mu over sigma। वही रूल z को x को z में चेंज करेंगे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन है बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हम म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लेंगे। तो सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू जो होता है वो ये बाइनोमियल से लेने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू जो होता है वो होता है n इंटू पी। एन हमारे पास क्या है, n 100 है और p इज 0.72। तो वी गेट म्यू इज इक्वल टू 72। तो नो इन द सेम वे वी विल फाइंड सिग्मा स्क्वायर दैट इज n इंटू पी इंटू क्यू। ये आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है। तो सो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर जो है वी गेट n इज 100 into 0.72 into 0.28, we get we have to find sigma. So we will take the under root of this। तो so finally we get sigma is equal to, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.16 under root। So we will use this sigma, the value of sigma is 20.16 square root। So we will use here mu and sigma। We get probability of z is less than 63.5 minus mu is 72 over 20.16, that is the value of sigma। After calculating we get probability of z is smaller than minus 1.893। यहाँ फिर से हम ये z की वैल्यू, ये देखिए ये z की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रही है। तो हम बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे तो इनक्वालिटी साइन विल बी चेंज, इनक्वालिटी साइन विल बी चेंज। तो सो इसको लिखने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बजाय हम पॉजिटिव बना लेते हैं z को, तो इनक्वालिटी साइन विल बी चेंज। तो सो वी कैन राइट इट एज, इसको यूं लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.893। ये भी वही होगी क्योंकि ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है। अबाउट द मीन, तो नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव 1.893 की प्रोबेबिलिटी भी उतनी होगी, ये लेस देन माइनस 1.893 की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी जो ग्रेटर देन पॉजिटिव 1.893 की होगी। तो सो वी कैन राइट इट एज दिस। नो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ गया, हम लेसर का साइन बनाना है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज स्मॉलर देन 1.893। नो वी कैन राइट
8। अब यहाँ पे स्मॉलर का साइन आ गया तो हम इसको 5 में लिख सकते हैं, 5 की फॉर्म में। 1 माइनस 5, 5 जो है दिस नोटेशन इज कॉल्ड 5, 5 शोज इन दिस चैप्टर द प्रोबेबिलिटी। तो सो 1 माइनस इसको लिख रहे हैं 5 into 1.893. Now we use the normal distribution table to find the probability against this value of z. So we get 1 minus 1 minus the value of probability of 1.893, we get 0.9700. So finally we get probability of 1.893, we get 0.9708. So finally we get the answer is uh, 0.0292. This is the final answer.